Hello all my dear students, a precious good morning to all of you. This is Ajay Prakash from Shivraj Singh Children Academy, Jaunpur, welcoming you to all once again to your official YouTube channel, that is Biology at Your Fingers. And as you know, at present your chapter number 3, Human Reproduction, is running. And in previous videos we have completed the first part of the gametogenesis. Simply that was spermatogenesis, means that the process of formation of sperm, as well as hormonal control of spermatogenesis, structure of the sperm, means that the portion that is related to male reproductive system was completed. And in today's class we are going to discuss about the process of formation of mature ovum, means that oogenesis. आज हम oogenesis discuss करेंगे and we will also discuss about the hormonal control of oogenesis and structure of the ovum. Remember, this topic is very important from board perspective as well as for your competitive exams, because from these topics of gametogenesis definitely a particular question may be framed in your board examination as well as in your competitive examination. So you have to watch the complete video, and after watching the complete video there will not be any doubt and you will easily able to do all the questions and there will be just icing on a cake. ठीक है, आज का टॉपिक आपके लिए मैं उतना आसान कर दूंगा कि आप जैसे ब्रेड पे मक्खन लगाते हैं. ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, और अंत तक पूरा वीडियो देखने के बाद कोई डाउट होगा नहीं, इसकी बिल्कुल गारंटी है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम स्टार्टिंग विद oogenesis. व्हाट इज oogenesis? लेट्स डिफाइन दैट. द oogenesis process is the process of formation of mature female gamete and that is ovum. यानी oogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम फीमेल गैमीट बनाते हैं और उस फीमेल गैमीट का नाम क्या है? ओवम है. And this oogenesis process, unlike spermatogenesis process, is discontinuous. जैसा मैंने आपको बताया था कि spermatogenesis process was a continuous process because at once it started at puberty, it will continue till death. यानी spermatogenesis process अगर एक बार puberty पे start हो गया तो वो चलता ही रहेगा. But oogenesis is a process that itself started during the embryonic development and at a certain stage of the meiosis first, that is prophase, and in prophase, that is diplotin, it got arrested. मतलब oogenesis का प्रोसेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो गया और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट होने के बाद ये एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके रुक गया और उस स्टेज को हमने कहा मियोसिस फर्स्ट. और मियोसिस फर्स्ट आपको मालूम ही है, इसमें कई फेजेस होते हैं. तो मियोसिस फर्स्ट का जो पहला लॉन्गेस्ट फेज था दैट इज प्रोफेज, और प्रोफेज फर्स्ट में जो आपका डिप्लोटिन स्टेज था वहां पे जाके मियोसिस फर्स्ट रुकी और ये प्रोसेस प्यूबर्टी तक रुका रहा. एंड आफ्टर प्यूबर्टी इट विल अगेन स्टार्ट एंड इट विल अगेन अरेस्टेड एट द मेटाफेज सेकेंड, एंड इफ देयर विल बी एंट्री इट विल कंटिन्यूड एंड अल्टीमेटली द फॉर्मेशन ऑफ ओवम विल टेकन प्लेस. मतलब ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, रुक रहा है, स्टार्ट हो रहा है, रुक रहा है. तो दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस. दिस क्वेश्चन वाज अ पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट why oogenesis is a discontinuous process. So oogenesis is a discontinuous process because once it started during the embryonic development and got arrested at the prophase first of meiosis first, and then again it started at the puberty under the influence of pituitary hormones. Those were FSH and LH, and then again it will stop at the metaphase second stage and will wait for the entry of the sperm, and then ultimately there will be formation of fertilized egg. So this topic is very interesting. कैसे ये प्रोसेस शुरू हुआ, कैसे स्टॉप हो गया, फिर कैसे शुरू हुआ, फिर कैसे स्टार्ट हुआ, तो ये पूरी जर्नी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. There are certain points those were written on your board, so let's elaborate all those things. फर्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट दैट इज ओवम इज नोन एज oogenesis. ओके, द लाइन नंबर 1. द लाइन नंबर 2, इट स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte. The process of oogenesis will start with the process of formation of primary oocyte by the process oocytogenesis. कहने का मतलब जो oogenesis का प्रोसेस था ये बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हुआ, प्राइमरी oocyte बनाते हुए. किस प्रोसेस से? oocytogenesis से. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रोसेस जो स्टार्ट हो रहा है प्राइमरी oocyte बनाते हुए, किस प्रोसेस से? oocytogenesis से. कब? बिफोर बर्थ. ठीक है, अब ये प्राइमरी oocyte बना कैसे? प्राइमरी oocyte को बनाने का काम करेंगी जर्म सेल्स. ठीक है, वो जर्म सेल्स कैसे बनाएंगे प्राइमरी oocyte? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन.
यानी जो प्राइमरी oocyte बना ये माइटोसिस सेल डिवीजन से बना हुआ है, ठीक है। और इटसेल्फ जो प्रोसेस है वो oocytogenesis है। oocytogenesis माइटोसिस के इन्फ्लुएंस के कारण प्राइमरी oocyte को बनाने में सफल हुई है। ओके, नाउ लेट्स कंसीडर द थर्ड पॉइंट, प्रीमोर्डियल oocyte। Primordial oocyte known as oogonia. This line is very important for your competition. ये एक सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, primordial oocyte is known as, so primordial oocyte is known as oogonia, या जिसे आप क्या कह सकते हो, जर्म सेल कह सकते हो। इसमें क्या होता है, माइटोसिस, और ये क्या बनाती है, प्राइमरी oocyte। अभी हमने आपको बताया, ठीक है। एंड फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये लाइन आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट हुई, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ऑफ दिस प्राइमरी oocyte ऑल्सो अकर बिफोर बर्थ, यानी माइटोसिस तो हुई कहां, oogonia में। माइटोसिस होने के बाद oogonia में प्राइमरी oocyte बना, और प्राइमरी oocyte में जो मियोसिस दूसरा वाला सेल डिवीजन है वो बर्थ के पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट होने के बाद मियोसिस फर्स्ट में पहुंचते पहुंचते, प्रोफेज फर्स्ट में पहुंचते पहुंचते, डिप्लोटिन स्टेज में पहुंचते पहुंचते ये अरेस्टेड हो जाएगा, वो मैंने आगे लिखा हुआ है। एंड यहां से देखिए, अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट, अगेन दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेज फर्स्ट, कहां प्रोफेज फर्स्ट में, डिप्लोटिन ऑफ मियोसिस फर्स्ट। आपको मालूम है कि जो मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज है वो लॉन्गेस्ट फेज है, और उस लॉन्गेस्ट फेज में क्या होता है, कौन कौन से स्टेज होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो पांच सब स्टेजेस हैं, उसमें से जो आपका कौन सा था, डिप्लोटीन, वहां पे ये प्रोसेस फिर से रुका, और रुकने के बाद वेट कर रहा है किसका, प्यूबर्टी का। आगे मैंने लिखा हुआ है ईच प्राइमरी oocyte, अभी प्राइमरी oocyte को घेरने वाली है कौन, ग्रेनुलोसा सेल्स, और जब प्राइमरी oocyte को ग्रेनुलोसा सेल्स घेर लेंगी उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। वही यहां पे लिखा हुआ है, ईच प्राइमरी oocyte गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड दीज आर कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। क्वेश्चन में बी फ्रेम्ड हियर, प्राइमरी oocyte दैट इज सराउंडेड बाय द ग्रेनुलोसा सेल्स आर नोन एज, आप बताओगे प्राइमरी फॉलिकल। ओके, नेक्स्ट, एंड लार्ज नंबर ऑफ दीज, अब ये लाइन फिर से इंपॉर्टेंट हुई, प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या काफी ज्यादा होती है, और इसमें से ज्यादातर प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं, कुछ ही बचते हैं, और जो डीजनरेट होते हैं प्राइमरी फॉलिकल, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो ये तो कुछ जनरल सी आइडियोलॉजी थी, कुछ जनरल सी डेफिनेशन थी जो आपके बुक में दी हुई है। तो इसमें मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, कौन सा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो बताया है। अब हम अपनी तरफ से क्या डाल रहे हैं, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं दैट इज फ्रॉम माय साइड। oogenesis इज व्हाट, मैंने बताया oogenesis इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, discontinuous process. Why oogenesis is discontinuous process? You can easily answer, because it started at the embryonic development and got arrested at the meiosis first of prophase first, and then ultimately it will again start at puberty, क्योंकि शुरू हो रहा है स्टॉप हो रहा है, शुरू हो रहा है स्टॉप हो रहा है, that's why this is what discontinuous process. And again remember, during the एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसा मैंने बताया ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है और स्टार्ट हुआ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। सो ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बेटा आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स कैसे बनते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्राइमरी oocyte है उसको अगर घेर लिया ग्रेनुलोसा सेल्स ने तो उनको आप क्या कहोगे, उनको आप कहोगे प्राइमरी फॉलिकल। और oocyte कैसे बना था, जर्म या रिप्रोडक्टिव सेल से माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद, ठीक। तो जो पहला मंथ था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 1700 फॉलिकल बन गए। आपको जान के आश्चर्य होगा, ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देयर आर 6 लाख प्राइमरी फॉलिकल। यानी पहले महीने में कितने थे 1700, दूसरे महीने में कितने हो गए 6 लाख, मतलब इतनी तेजी से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और जो फॉलिकल्स के बनने का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा, फॉलिक्यूलोजेनेसिस। लेट्स कंसीडर वंस मोर, ड्यूरिंग द 5th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देयर आर 7 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल। कितनी प्राइमरी फॉलिकल्स हो गई, 7 मिलियंस। एंड मोस्ट ऑफ दीज, एंड आगे लिखेंगे, एंड मोस्ट ऑफ दीज गॉट डीजनरेटेड, किस प्रोसेस से, बाय फॉलिकुलर एट्रीसिया। एंड अब फिर से आपके लिए चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एट बर्थ 2 मिलियन। जब जन्म हुआ तो कितनी प्राइमरी फॉलिकल,
2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स। अब एट प्यूबर्टी 60K to 80K प्राइमरी फॉलिकल, यानी अब देखिए, आप खुद इमेजिन करिए कितना इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। फर्स्ट मंथ है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का तो 1700 थे, सेकंड मंथ में 6 लाख, थर्ड मंथ में कितने हो गए, या हम थर्ड मंथ को छोड़ के डायरेक्टली फिफ्थ मंथ तक पहुंचते हैं तो हो गए हमारे पास 7 मिलियंस। इसमें से ज्यादातर डेजर्नेट हुए बर्थ के टाइम पे 2 मिलियन के आसपास थे, और इसमें से प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते कितने हो गए, 60,000 से 80,000 के पास। अब ध्यान दीजिए, आउट ऑफ 500 प्राइमरी फॉलिकल्स only one forms egg। अब क्वेश्चन जो यहां से बोर्ड में पूछा गया है वो क्या क्या पूछा गया है, गिव स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis as a 3 mark question, गिव स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis as a 2 mark question, ड्रॉ a bell label diagram of mature egg। This question is less important, but the structure or diagram of the ovum can be given and may be asked as a labeling A B C D करके आपसे पूछ लिया कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। तो ये 3 तरह से क्वेश्चन, और लास्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का कंपैरिजन पूछ लेता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, oogenesis। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको। एक नॉर्मल वे है, डिटेल आउटलाइन है, और दूसरा शॉर्टकट है। अगर आपको डिटेल नहीं आ रहा है, शॉर्टकट वाला यूज किया, 3 नंबर का है तो 2.5 तो मिलना ही मिलना है। तो सब जाने से अच्छा है कुछ मिल जाए, ठीक। तो हम आपको 2 मेथड बताएंगे, तो लेट्स क्विकली स्टार्ट। पहले इसको इरेज कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं बेटा। ओके देन स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis, ठीक है। तो आपको मालूम है हम किससे स्टार्ट करने वाले हैं, oogonia से। तो दिस इज व्हाट, oogonia कैसी है, डिप्लॉयड, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं यहां से कि जो oogonia है, इसमें जो पहला स्टेज है वो होगा माइटोसिस सेल डिवीजन का। कौन सा होगा, माइटोसिस। कितनी सेल्स बनेंगी, 2 सेल्स बनेंगी। आपको मैं बताऊं, हियर द oogenesis प्रोसेस कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 3 स्टेप। द स्टेप नंबर 1 इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को कैरेक्टराइज किया जाता है माइटोसिस सेल डिवीजन से, मतलब यहाँ पे संख्या बढ़ेगी सेल्स की। दूसरा होता है बेटा ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में होती है वाइटेलोजेनेसिस। क्या होती है, वाइटेलोजेनेसिस, जिससे सेल्स की शेप और साइज बढ़ जाती है। वाइटेलोजेनेसिस का मतलब हुआ यॉक का फॉर्मेशन, यॉक सिंथेसिस, जो कि क्या है, आगे चल के न्यूट्रिएंट या नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। अगला होता है मैचुरेशन, जो कि तीसरा स्टेप है, और मैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, मियोसिस का। यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होगा और फाइनल ओवम बनेगा। तो जो पहला स्टेप अभी चल रहा है ये मल्टीप्लिकेशन का चल रहा है, फिर से इसमें माइटोसिस होगा 1 2, ये सारी की सारी आप देख सकते हैं सेल्स की संख्या बढ़ रही है। ये स्टेप 1 है जिसको आप कहते हो क्या, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या बनी है, ये सभी की सभी क्या है, oogonia ही है। अब आगे क्या होगा, इसमें से कोई भी हम ले लेते हैं, मान के चलते हैं ये वाली नेक्स्ट फेज में एंटर कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज। इसकी साइज हमने बड़ी कर दी है। ग्रोथ फेज का कैरेक्टर क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगी, वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस हुआ मतलब यॉक सिंथेसिस हुई। यॉक सिंथेसिस की वजह से सेल्स की शेप और साइज बढ़ी। अगर हम देखें ह्यूमन फीमेल्स में कितनी बढ़ती है, ह्यूमन फीमेल्स में 200 टाइम्स। और दूसरा अगर हम देखें बेटा यही हैन के केस में, हैंस में भी ये 200 टाइम्स। अगर हम फ्रॉग में देखें तो फ्रॉग में नियरली 2000 टाइम्स। और अगर हम देखें ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला, तो ये आपको देखने को मिलेगा नियरली 19,000 टाइम्स। ओके, ये सारा जो शेप बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, वाइटेलोजेनेसिस यानी यॉक सिंथेसिस की वजह से। ये कौन सा फेज है, फेज नंबर 2 है, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज में सेल एंटर करने के बाद इसका जो नाम पड़ा उसको कहा गया प्राइमरी oocyte। और ये प्राइमरी oocyte क्या है, डिप्लॉयड है। अब आपको मालूम है ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 स्टार्ट करेगा। सो यहां से हम देखें अगर, तो बेटा जो मियोसिस 1 है यानी मियोसिस फर्स्ट, ये स्टार्ट होगा। और जब मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा तो ये कंप्लीट नहीं होगा। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट स्टार्टेड बिफोर
बिफोर बर्थ बट गॉट अरेस्टेड at डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट में कौन सा? प्रोफेज फर्स्ट। ठीक, अब ये मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं होगी, ये कंप्लीट कब होगी? जब आप पहुंचेंगे कहां? प्यूबर्टी पे। तो मान के चलते हैं ये अरेस्ट हुई थी, फिर जो एट बर्थ भी ये अरेस्टेड ही थी, लेकिन प्यूबर्टी पे पहुंची और सर्टेन हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस हुआ, तो उस कंडीशन में ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हुआ। तो ये जो सेल्स थी, इसमें जो साइटोप्लाज्म था इसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक छोटी सेल बनेगी और एक बड़ी सेल बनेगी, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte, और इसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, जो कि क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है। ये फर्स्ट पोलर बॉडी क्या हो जाएगी? डीजनरेट। सेकेंडरी oocyte जो बना, चूंकि मियोसिस से बना है, अब ये क्या हुआ? हैप्लॉइड हुआ। क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड में पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी oocyte? सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी oocyte इज दैट प्राइमरी oocyte इज डिप्लॉयड, सेकेंडरी oocyte इज हैप्लॉइड। प्राइमरी oocyte इज द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन, सेकेंडरी oocyte इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। प्राइमरी oocyte form from the oogonium by the mitosis, while secondary oocyte is formed फ्रॉम द प्राइमरी oocyte बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। यानी आपको मैं बताऊं कि जो प्राइमरी oocyte था वो डिप्लॉयड है, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉयड है। प्राइमरी oocyte बनता है माइटोसिस से, सेकेंडरी oocyte बनता है मियोसिस से। प्राइमरी oocyte जो बन रहा है वो किससे बन रहा है? ऊगोनिया से बन रहा है, और जो सेकेंडरी oocyte बन रहा है वो खुद प्राइमरी oocyte बना रहा होता है। अब फिर से इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, फर्स्ट पोलर बॉडी डिजनरेट हो गई और सेकेंडरी oocyte आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। ध्यान दीजिए, यहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है साइटोप्लाज्म का, और एक प्राइमरी oocyte से एक एग बनता है। तो क्वेश्चन यहां पे कोई पूछ सकता है आपको, जब एक प्राइमरी oocyte से एक ही एग बनना था तो मियोसिस की जरूरत क्या हुई? तो आपको मालूम है कि हमारा जो प्राइमरी oocyte है ये कैसा है? डिप्लॉयड है, और जो इसको एग बनाना है या ओवम बनाना है वो कैसा होगा? हैप्लॉयड। तो भैया डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाने के लिए तो मियोसिस की जरूरत पड़ेगी ना, तो क्रोमोसोम नंबर को हाफ करने के लिए मियोसिस होना जरूरी है। अदरवाइज एक प्राइमरी oocyte से एक सीधा ओवम बन गया होता, इन बीच के स्टेजेस की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब बेटा मैं आपको बताऊं, यहां पे अब दूसरा होगा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड, अब मियोसिस सेकेंड भी जो होती है ये अरेस्टेड हो जाती है, गॉट अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 एंड वेट फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म। यानी अब जो आपका सेकेंडरी oocyte है ये मियोसिस 2 तभी कंप्लीट करेगा जब एंट्री होगी किसकी? स्पर्म की। अब मान के चलते स्पर्म की एंट्री हो गई तो फिर से एक छोटी सेल्स बनेगी और एक बड़ी सेल बनेगी। तो ये हमारी हो गई छोटी सेल और ये हो गई बड़ी वाली सेल। तो छोटी सेल को हमने क्या कहा? सेकेंड पोलर बॉडी, और बड़ी वाली सेल का नाम है एग या ओवम, जो कि क्या है? हैप्लॉयड है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द oogenesis process. So let's quickly recap. This was the oogonia that was diploid, means that जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसमें क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद इसमें जो आपकी oogonia थी इनकी सेल्स की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, ये बढ़ गई, ये न्यूमरस सेल्स यहाँ पे हुई। तो पहले फेज में क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन। इसमें से हमने देखा कोई भी एक सेल या जो भी सेल्स बनी है इनमें इसकी सारी की सारी इंटर कर सकती है नेक्स्ट फेज में, जिसको हमने कहा ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज का प्रीमियर कैरेक्टर है वाइटोलोजेनेसिस। वाइटोलोजेनेसिस हुई तो इसकी शेप और साइज बढ़ गई, न्यूट्रिएंट इसमें पर्याप्त मात्रा में है। अब ये सेल क्या करती है? मियोसिस फर्स्ट में इंटर कर जाती है, और मियोसिस फर्स्ट में इंटर करने के बाद अरेस्ट हो जाती है कहाँ? प्रोफेज फर्स्ट, और उसमें कहाँ? डिप्लोटीन स्टेज में। ये सारी कहानी हुई जन्म से पहले। अब एट बर्थ क्या होगा? एट बर्थ आप देखेंगे यही प्राइमरी oocyte जो कि अरेस्टेड था किस स्टेज में? आपको मालूम है मियोसिस फर्स्ट वाले स्टेज में। यानी जन्म से पहले और जन्म तक
आपको क्या देखने को मिला, प्राइमरी oocyte जिसमें मियोसिस शुरू होकर बंद हो चुकी थी, अब वो फिर से स्टार्ट होगी कहाँ, एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी, ये इसके नीचे का जो प्रोसेस है ये सब कहाँ हो रहा है, एट प्यूबर्टी हो रहा है। तो जैसे ही प्यूबर्टी हुई, एफएसएच और एलएच हार्मोन का इन्फ्लुएंस हुआ, मियोसिस फर्स्ट जो कि रुकी हुई थी स्टार्ट हुई और इसने प्राइमरी oocyte से क्या बना लिया, सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte में मियोसिस तो स्टार्ट होकर मेटाफेज 2 तक जाएगी और फिर से अरेस्ट हो जाएगी, वेट करेगी स्पर्म की एंट्री का। स्पर्म की एंट्री हुई तो ये क्या बनाएगी, फर्टिलाइज एग या ओवम का फॉर्मेशन कर लेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द oogenesis प्रोसेस। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte में डिफरेंस क्या है, आपका जो मियोसिस फर्स्ट है वो किस स्टेज पे अरेस्ट होता है, मियोसिस सेकेंड किस स्टेज पे अरेस्ट होता है, ये प्रोसेस कब शुरू हुआ, कब जाके ये कंप्लीट होता है। तो शुरू कब हुआ था, ये शुरू हुआ था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, और ये प्रोसेस कंप्लीट कब होता है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होकर एफएसएच और एलएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में कंप्लीट होता है। और ये प्रोसेस रुकता कब है, मेनोपॉज जब हो जाता है 50 से 55 साल के आसपास, तो यहाँ पे रुक जाता है। अब ये तो था एक डिटेल आउटलाइन। अब हम आपको एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से बताएंगे। अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर पाते हैं तो उस माध्यम से भी आप करेंगे तो आपको नंबर उतना ही मिलेगा। हो सकता है पॉइंट में कुछ रिड्यूस कर दिया जाए, अगर 3 नंबर का है तो आपका आधा नंबर काट लिया जाए, बट दिस इज द बेस्ट वे। और मैं आपको एक अल्टरनेट मेथड बताता हूं अगर आप ये भूल रहे हैं तो, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड देन आफ्टर यू विल एबल टू फाइंड आउट द जुगाड़ टेक्नोलॉजी मेथड। Okay, so this is alternative method. As you know, this is what, ओगोनियम, that is what, diploid. यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस डिफरेंशिएशन, माइटोसिस differentiation, and after mitosis differentiation there will be formation of primary oocyte, that is also diploid. Now this primary oocyte will converted after meiosis into secondary oocyte, और ये meiosis फर्स्ट होगा और फिर आपको जो सेकेंडरी oocyte है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एग या ओवम में। कब, जब meiosis 2 कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड है, एग या ओवम भी क्या है, हैप्लॉइड है। तो दिस इज व्हाट, अल्टरनेट मेथड। अब इस अल्टरनेट मेथड के बाद हम आपको बताएंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis. So in hormonal control of oogenesis there are two important structures, first hypothalamus and second pituitary gland. They will play an important role. So we are starting with hypothalamus here. So hypothalamus, that is what, master of your master gland, and this hypothalamus is a part of your brain. और brain में किसका पार्ट है, forebrain का पार्ट है, ठीक है। अब इस hypothalamus के द्वारा एक पर्टिकुलर फैक्टर या हार्मोन जिसे आप कहते हैं रिलीज किया जाएगा, GnRH, इसको हम कहते हैं gonadotrophin releasing hormone, and under the influence of this hormone anterior pituitary will got activated. Anterior pituitary will be activated, and now anterior pituitary will release two kind of hormones. The hormone number 1, that is known as follicle stimulating hormone, follicle stimulating hormone, and this follicle stimulating hormone will influence the follicular cells. दूसरा है बेटा LH को आप क्या बोलते हो, luteinizing hormone, ठीक है, जो कराएगा ओव्यूलेशन। अभी हम आपको दोनों का रोल बताते हैं। एफएसएच क्या करेगा, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स और फॉलिकुलर सेल्स। कैसे, इनके इन्फ्लुएंस के कारण जो प्राइमरी फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल किसमें चेंज हो गया, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो गया। एलएच क्या कराता है, एलएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है, रिलीज ऑफ ओवम, ठीक है। तो दो हार्मोन ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पहले ने क्या किया, जो फॉलिकल्स थी प्राइमरी उनको सेकेंडरी से टर्सरी या ग्राफियन फॉलिकल में चेंज किया, और इसके साथ साथ फिर जब वो मैच्योर हो गई उसके बाद एलएच उस पर एक्ट करके किसको, ओवम को रिलीज करा दे रहा है ओव्यूलेशन प्रोसेस से। अब ये ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एफएसएच और एलएच इन दोनों का इफेक्ट कहाँ पे आपको दिख रहा है, दोनों का इफेक्ट आपको दिख रहा है ओवरी पे, ठीक है, क्योंकि ओव्यूलेशन का प्रोसेस कौन करेगा, ओवरी ही करेगी। अब जब ओवरी
पे ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो जब मैच्योर हो गई ओवरी तो वो क्या करेगी, वो भी बैठने वाली नहीं है, वो भी दो हार्मोन रिलीज करेगी। एक को हम कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज नोन एज व्हाट, फीमेल सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेलनेस, मतलब जितने भी फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो डेवलप कराता है कौन, एस्ट्रोजन। दूसरा हार्मोन ये रिलीज करेंगे जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन क्या है बेटा, ये है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग। ओके, अब इन दोनों का इम्पैक्ट क्या होगा, एस्ट्रोजन चूंकि प्यूबर्टी हो चुकी है तो जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उनको मेंटेन करेगा, वाइडनिंग ऑफ सिप्स, ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर्स एज वेल एज बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डीपनिंग ऑफ द वाइस, बहुत सारे हैं, अपीयरेंस ऑफ हेयर। और प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मजबूत करके प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। अब इन दोनों का इम्पैक्ट क्या होता है, जो एस्ट्रोजन है ये पॉजिटिव फीडबैक दे देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और किसको, हाइपोथैलेमस को। इसका काम है पॉजिटिव फीडबैक देके और जो फैक्टर ये रिलीज कर रहा है उसको रिलीज कराना, ये सारा प्रोसेस को कंटिन्यू करना। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये इसका नेगेटिव फीडबैक है काम, और ये पिट्यूटरी को भी इसने क्या दिया, नेगेटिव फीडबैक दे दिया, और हाइपोथैलेमस को भी क्या कर दिया इसने, नेगेटिव फीडबैक दे दिया। नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये हुआ कि जो लगातार GnRH रिलीज हो रहा था अब उसकी रिलीज को बंद किया जाना चाहिए। ऐसा होगा क्यों, आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोजन लगातार इसको पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। अब एस्ट्रोजन जब पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है तो ये सारा प्रोसेस बहुत तेजी से हो रहा है, ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन होने के बाद ओवम रिलीज हुआ, ओवम आगे चल के फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट बना, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होके और वो अब यूट्रस में क्या कर रहा है, डेवलप हो रहा है। अब जब वो यूट्रस में बेटा डेवलप हो रहा है उस कंडीशन में हमको किसी और ओवम की जरूरत नहीं है, तो इस वजह से जब बेबी ऑलरेडी डेवलप कर रहा है, 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड डेवलप कर चाहिए उसको डेवलप होने के लिए, तो वो 9 मंथ में फिर ये ओवुलेशन का प्रोसेस ना हो, इस वजह से प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, हाइपोथैलेमस को, फिर ये GnRH रिलीज करना बंद कर देगा, तो फिर ये FSH और LH नहीं रिलीज होगा। ध्यान दीजिए, अब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कलेक्टिवली किस पे एक्ट करेंगे, यूट्रस पे एक्ट करेंगे, ठीक। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था किसका, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। लेट्स क्विकली रिकैप, दिस इज व्हाट हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, इट विल रिलीज GnRH, gonadotrophin releasing hormone, that will act on anterior pituitary to stimulate it to release follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Follicle stimulating hormone will act on the follicular cells or follicles and they will convert them into Graafian follicle, and when there will be formation of mature follicle, LH will act on them and they will rupture them to release the ovum, that is known as ovulation. Both these will act on ovary, and ovary will also release two kind of hormone, estrogen that is responsible for development of secondary sexual characters in the case of females, and progesterone that will maintain the pregnancy. Progesterone will provide the negative feedback to both anterior pituitary as well as to hypothalamus, while estrogen provide positive feedback to hypothalamus as well as anterior pituitary. So this was all about the oogenesis and its hormonal control. In the last we are going to discuss impact of the FSH and LH by means of a diagram under the transverse section of ovary. Let's quickly discuss the role of various hormones with the help of transverse section of ovary. As you know, there was two regions, one was cortex and another was of medulla. तो हमने ये बाहर cortex और ये अंदर medulla बना लिया। अब इनको हम फटाफट देखेंगे क्या इवेंट्स थे। आपको पहले से मालूम है ये क्या थे, प्रीमोर्डियल oocyte, या इसी को आप क्या कह सकते हो बेटा, फॉलिकल, ठीक है। ये इसमें माइटोसिस हुआ था, माइटोसिस होने के बाद इन्होंने क्या बनाया था, प्राइमरी oocyte, और आपको मालूम है इस प्राइमरी oocyte को घेर लिया था किसने, ग्रैनुलोसा सेल्स ने। किसने घेरा था, ग्रैनुलोसा सेल्स, और ग्रैनुलोसा सेल्स ने भी इसको घेरा, तो ये क्या हो गया था, प्राइमरी फॉलिकल। अब इस पे किसका एक्ट होगा, FSH हार्मोन का। FSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस के कारण ये प्राइमरी oocyte जो था वैसा ही है, ग्रैनुलोसा सेल्स की संख्या बढ़ी, मतलब फॉलिकल सब मैच्योर होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये फॉलिकल्स की संख्या बढ़ी, यहाँ पे एक कैविटी भी बनना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको भी दिखा लेते हैं। तो बेटा ये चीज़ें आपको जो दिख रही हैं ये हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, और ये फिर डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में, और इसी की वजह से कैविटी जिसको हम क्या कहते हैं एंट्रम, वो बनना स्टार्ट हुई। ये हमारी क्या हो गई, सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये कन्वर्ट हो जाती है टर्सरी फॉलिकल में, जहाँ पे एक कैविटी आपको क्लियरली देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगा। अब जो ये प्राइमरी oocyte है किस में चेंज हो गया, सेकेंडरी oocyte में, मतलब इसने मियोसिस
कंप्लीट कर ली है। और बाहर आपको दिखेंगी कौन, ग्रैनुलोसा सेल्स, और ये आपको देखने को मिल रही हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। ठीक है बेटा, ये कौन है, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। और इस ग्रैनुलोसा सेल्स के पास अंदर एक कैविटी बनी हुई है जिसको हमने क्या कहा, एंट्रम, और इस एंट्रम में भरा हुआ है लिकर फॉलिकुली जो कि सिक्रीट किया गया है, लिकर फॉलिकुली जो कि सिक्रीट किया गया है इन्हीं ग्रैनुलोसा सेल्स के द्वारा। ठीक, अब ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये टर्सरी फॉलिकल है। यहाँ पे भी किसका रोल दिख रहा है, एफएसएच हार्मोन का दिख रहा है। अब ये बेटा जो आपका टर्सरी फॉलिकल था, थोड़ा इसको और वाइडर कर लेते हैं। टर्सरी फॉलिकल चेंज हो जाएगा किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में, और ग्राफियन फॉलिकल में भी सेकेंडरी oocyte एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल्स का डिपोजिशन होगा और कैविटी जो एंट्रम वाली थी वो और बड़ी हो जाएगी। ये हमने बना लिया और फटाफट खींचते हैं। यहाँ पे 2 लेयर्स आपको दिखेंगी। यहाँ पे भी जो हमने बताया था टर्सरी फॉलिकल, यहाँ पे जो बाहर की लेयर थी वो क्या थी, थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली लेयर क्या थी, थीका इंटरना। ठीक है, यहाँ पे भी वही, बाहर थीका एक्सटर्ना, अंदर थीका इंटरना। ठीक है, इसमें जो एंट्रम है, एंट्रम, और ये जो सेकेंडरी oocyte था बेटा, इसके बाहर ग्रैनुलोसा सेल्स एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा इज ए प्रोटेक्टिव लेयर दैट सराउंड्स द सेकेंडरी oocyte। किसने सिक्रेट किया है, खुद ग्रैनुलोसा सेल्स ने। यहाँ पे जो मास डिपॉजिट हुआ था इसको हम कहते हैं क्यूमुलस ऊफोरस, जो कि सेकेंडरी oocyte को उसके स्थान पे होल्ड करने का काम करता है। तो ये है अभी आपकी ग्राफियन फॉलिकल। कौन है, ग्राफियन फॉलिकल है ये। ठीक है, अब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी, मतलब अब दूसरा वाला जो हार्मोन है जिसको हमने कहा था LH, और उसने क्या करा दिया, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करा दिया। और जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी तो कौन रिलीज हो जाएगा, ये सेकेंडरी oocyte। क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte बेटा रिलीज हो गया, और इसी को आपने क्या कहा, ओव्यूलेशन। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बचा इसको आपने क्या कहा, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करेगा। किसको रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। और इसमें से जो थीका इंटरना थी ये क्या रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेगी। तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज किया जा रहा है थीका एक्सटर्ना के द्वारा, और कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन रिलीज किया जा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। अगर बेटा ये जो सेकेंडरी oocyte है आगे चल के ओवम एग में फर्टिलाइजेशन होने के बाद कन्वर्ट हुआ तो ये स्ट्रक्चर बचेगा, अदरवाइज ये डिजनरेट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकैंस में ये कन्वर्ट हो गया। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने आपको बताया, किसका, जो इन्फ्लुएंस था एफएसएच और एलएच का, इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का। तो एक बार फिर से देखिए, ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल या oocyte है जिसमें माइटोसिस हुआ, इन्होंने प्राइमरी oocyte बनाया, प्राइमरी oocyte को घेर लिया ग्रैनुलोसा सेल्स में, वो हो गई है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल एफएसएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस के कारण सेकेंडरी फॉलिकल में, फिर टर्सरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हुई। फिर जब ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराना हुआ तो एलएच हार्मोन आया, और एलएच हार्मोन ने इस सेकेंडरी oocyte जो कि अंदर था इसको बाहर कर दिया, और जो स्ट्रक्चर बचा वो था कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज किया, और अगर ये सेकेंडरी oocyte आगे चल के फर्टिलाइज एग में कन्वर्ट हुआ तो ये रहेगा और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, अदरवाइज ये डिजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकैंस बना लेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द hormonal control of oogenesis. I hope that after watching the video all the concepts will be clear, and if there is any doubt feel free to leave in your comment box. So that is all about for today, and thank you very much for watching the video, and don't forget to like the video, subscribe the channel and share it with your friends. So that is all about for today. Have a nice day, keep smiling and jai Hind.